بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا مسلمان کی زندگی سے متعلق چند اہم سوالات اور ان کے جوابات۔ مسلمان کو اپنا عقیدہ کہاں سے اخذ کرنا چاہیے؟ مسلمان اپنا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے اخذ کرنا چاہیے۔ دین اسلام کے کتنے درجے ہیں؟ دین اسلام کے 3 درجے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اور اس کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے اس کا فرما بردار ہونا اور شرک اور مشرکین سے برات کا اعلان کرنا اسلام ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل اور زبان کے اقرار کے عمل کو ایمان کہتے ہیں، جو اطاعت سے بڑھتا اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل درجے کی شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے ادنا درجے کی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب غیر اللہ کی عبادت کا حقدار ہونے کی نفی اور صرف اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کرنا ہے۔ قیامت کے دن نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جماعت کے علاوہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جماعت میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گی۔ چنانچہ حق وہی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ گامزن تھے۔ اس لیے اگر تم نجات چاہتے ہو اور اس بات کے خواہش مند ہو کہ تمہارے اعمال قبول ہوں، تو اتباع یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو لازم پکڑو اور بدعت سے دوری اختیار کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اہل قبلہ مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن میدان محشر میں اور جنت کے اندر مومنین دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب اس بات کا پختہ اقرار کرنا ہے کہ فرشتوں کا مستقل وجود ہے اور وہ اللہ عز و جل کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔
जैसा कि सूरह अल-अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अल्लाह के बाइज़्ज़त बंदे हैं, किसी बात में अल्लाह पर पेश दस्ती नहीं करते, बल्कि उसके फरमान पर कारबंद हैं। फरिश्तों पर ईमान लाने में 4 बातें शामिल हैं। नंबर 1, उनके वजूद पर ईमान रखना। नंबर 2, उनमें से जिनका नाम हमें मालूम है उन पर नाम की तफसील के साथ ईमान रखना, जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। नंबर 3, उनकी जो सिफ़ात हमें मालूम है उन पर ईमान रखना, जैसे उनके जिस्म का बहुत बड़ा होना। नंबर 4, उनके जिन मखसूस आमाल का हमें इल्म है उन पर ईमान रखना, जैसे मलकल मौत का काम। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, जिसकी तिलावत इबादत है। अल्लाह ही से उसकी इब्तदा हुई और फिर उसी की तरफ लौट जाएगा। अल्लाह ताला ने हकीकत में हुरूफ और आवाज़ के साथ कलाम फरमाया है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह से सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया है। तमाम आसमानी किताबें भी कलाम इलाही हैं। रसूलों पर ईमान लाने का मतलब क्या है? रसूलों पर ईमान लाने का मतलब इस बात की मुकम्मल तस्दीक करना है कि अल्लाह ने हर उम्मत में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें एक अल्लाह की इबादत करने और उसके सिवा पूजी जाने वाली हर चीज़ का इनकार करने की दावत देता। नेज़ इस बात की तस्दीक करना है कि सारे रसूल सच्चे, नेक, पाकबाज, मुत्तकी, अमानतदार और हिदायत याफ्ता थे और अल्लाह ताला ने उन्हें जो पैगाम देकर भेजा था उन्होंने उसकी तबलीग फरमा दी, और ये कि वो सबसे अफजल मखलूक हैं, और इस बात की तस्दीक करना कि वो अपनी पैदाइश से वफ़ात तक शिर्क से पाक रहे हैं। योम आखरत पर ईमान लाने का मतलब क्या है? आखरत के दिन पर ईमान लाने का मतलब इस बात की मुकम्मल तस्दीक करना है कि क़यामत आ कर रहेगी। इसी ईमान लाने में मौत पर, मौत के बाद कब्र की आजमाइश पर और कब्र के अजाब या उसकी आसाइश पर, सूर फूंके जाने पर, लोगों के अपने रब के सामने खड़े होने पर, सहीफ़ों के फैलाने जाने पर, मीज़ान नस्ब किए जाने पर, पुलसरात पर, हौज़े कौसर पर, शफात पर और फिर लोगों के जन्नत या जहन्नम में दाखिल किए जाने पर ईमान लाना भी शामिल है। क़यामत के दिन कितनी किस्म की शफात होगी? क़यामत के दिन शफात की कई किस्में हैं। उनमें सबसे बड़ी शफात शफात उज़्मा है, जो महशर के दरमियान उस वक्त पेश आएगी जब लोग फैसले के इंतज़ार में 50,000 साल गुजार चुके होंगे। चुनाचा अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से सिफारिश करेंगे और ये अर्ज़ करेंगे कि लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दे। ये शफात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है और यही वो मकाम महमूद है जिसका आपसे वादा किया गया है। दूसरी शफात जन्नत का दरवाज़ा खुलवाने के लिए होगी और वो सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खुलवाएंगे और तमाम उम्मतों में से सबसे पहले आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। तीसरी शफात उन लोगों के लिए होगी जिनके जहन्नम में डाले जाने का फैसला हो चुका होगा कि उन्हें जहन्नम में ना डाला जाए। चौथी शफात उन गुनहगारों के लिए होगी जो जहन्नम में जा चुके होंगे कि उन्हें जहन्नम से निकाल लिया जाए। और पांचवी शफात बास अहले जन्नत की बुलंद दर्जे के लिए होगी। मौखिरल ज़िक्र 3 शफातें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास तो नहीं, लेकिन आपको इस बारे में अव्वलियत हासिल होगी। फिर आपके बाद दीगर अंबिया, मलाइका, सालिहा और शोहदा का नंबर होगा। छठी शफात कुछ मोमिन बंदों के हक में होगी कि उन्हें बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त मिल जाए। सातवीं शफात बास कुफ़ार से अजाब में तखफीफ के लिए होगी और ये शफात
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है कि अपने चचा अबू तालिब से अजाब में तकफीफ के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व ताला किसी की शफात के बगैर महज अपनी रहमत से कुछ लोगों को जो अकीदा तौहीद पर फौत हुए होंगे जहन्नम से निकालेगा और उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ऐसे लोगों की तादाद का इल्म अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं है। क्या जिंदा शख्स से मदद और शफात तलब करना जायज़ है? जी हाँ, ऐसा करना जायज़ है। शरीयत ने दूसरों की मदद की तरकीब दी है। जैसा कि सूरह अल-माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो। और सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदों की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। रहा शफात का मामला, तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। मायने के लिहाज से शफात यानी वास्ता यानी दरमियान में पढ़कर किसी की मदद करने को कहते हैं। सूरह अल-निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स किसी नेकी या भले काम की शफात करेगा उसे भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। और सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शफात कर दिया करो, अजर सवाब पाओगे। ये शफात जायज़ तो हैं, लेकिन इसके लिए चंद शर्तें हैं। नंबर 1, शफात जिंदों से तलब की जाए, क्योंकि मुर्दा खुद अपने नफ़ा का मालिक नहीं है, तो किसी गैर को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है। नंबर 2, जिससे शफात की जा रही है और वो अपने मुखातिब की बात को समझ भी रहा हो। और नंबर 3, मतलूब चीज़ हाजिर हो। किस तरह के वसीले जायज़ हैं? 3 तरह के वसीले जायज़ हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के अस्मा व सफ़ात का वसीला पकड़ना। नंबर 2, अपने किसी नेक अमल के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ करना। और नंबर 3, किसी ऐसे हाजिर, जिंदा और नेक मर्द मुस्लिम की दुआ का वसीला जिसकी कबूलियत दुआ की उम्मीद की जाती है। मुर्दों या गैर मौजूद शख्स को पुकारने यानी उनसे दुआ करने का क्या हुक्म है? मुर्दों से या गैर मौजूद शख्स से दुआ करना शिर्क है, क्योंकि दुआ एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह ताला का हक है। जैसा कि सूरह फातिर में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिन्हें तुम उस अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं हैं। अगर तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकते, बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारे उस शिर्क का साफ इनकार कर देंगे। सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका इंतकाल उस हाल में हुआ कि वो अल्लाह के सिवा किसी शरीक को पुकारता था, तो वो जहन्नम में जाएगा। क्या जन्नत और जहन्नम इस वक्त मौजूद हैं? जी हाँ, जन्नत और जहन्नम दोनों मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों की तख्लीक से पहले ही जन्नत और जहन्नम को पैदा फरमाया हुआ है, और ये दोनों कभी फना या ख़त्म नहीं होंगी। फिर अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से कुछ लोगों को जन्नत के लिए पैदा फरमाया है और कुछ लोगों को अपने अदल से जहन्नम के लिए पैदा फरमाया है। और जो शख्स जिस जगह के लिए पैदा हुआ है उसके लिए वही काम करना आसान कर दिया गया है। तकदीर पर ईमान लाने का क्या मतलब है? तकदीर पर ईमान लाने का मतलब इस बात की पुख्ता तस्दीक करना है कि हर किस्म की खैर या शर का वजूद अल्लाह के फ़ैसले और कुदरत से है, और अल्लाह जो चाहता है उसे कर डालने वाला है। क्या मखलूक को हकीकी कुदरत
वो मसीयत और इरादा हासिल है? जी हाँ, इंसान को मसीयत व इरादा और इख्तियार हासिल है, लेकिन इसकी मसीयत अल्लाह ताला की मसीयत से बाहर नहीं है। सूरह अल तकवीर में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के चाहे बगैर कुछ नहीं चाह सकते। और सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल करो, क्योंकि हर शख्स को वही अमल मुयस्सर आता है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें अकल, समात और बसारत से इसीलिए नवाजा है ताकि हम अच्छी और बुरी चीज़ों में तमीज़ कर सकें। तो क्या कोई ऐसा अक्लमंद है जो चोरी करे फिर कहे अल्लाह ताला ने मेरे लिए इसको मुकद्दर किया है? और अगर ऐसा कहे भी तो लोग उसकी बात को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि वो सज़ा पाएगा और उससे कहा जाएगा कि अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर सज़ा भी मुकद्दर कर रखी है। इसलिए तकदीर से इस्तदलाल और इसे बतौर अज़र पेश करना जायज़ नहीं, बल्कि ये तो तकज़ीब है। जैसा कि सूरह अल इनाम में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने शिरक किया अनकरीब कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिरक करते और ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने झुटलाया जो उनसे पहले थे।